नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की एमसीक्यू की वीडियो सीरीज में इस वीडियो में आप 45 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। इस वीडियो में सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन के एमसीक्यू को शामिल किया गया है। सभी एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय बजार्ने स्टॉपस्ट्रप, जेम्स गॉसलिन, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन। राइट आंसर इज बजार्ने स्टॉपस्ट्रप। Next question, C++ is blank programming language. Procedure oriented programming language, low level programming language, object oriented programming language, fourth generation programming language. Right answer will be object oriented. ऐसे तो C++ को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहा जाता है, लेकिन इस एमसीक्यू में जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से सबसे जो करेक्ट, सबसे जो नजदीकी आपका आंसर होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। Now next question, the early name of C++ was Simula, Incremented C, Advanced C, C with class. C++ पहले किस नाम से जाना जाता था? Right answer is C with class. Next question, C++ is blank based language, interpreter based, assembler based, compiler based, interpreter and compiler both. Right answer is compiler based. Next question, in C++, is blank operator, keyword operator, increment operator, identifier operator, addition operator. Right answer is plus plus is increment operator. Next question, which of the following types is the language C++? Procedural, statically typed language, dynamically typed language, all of the above. Right answer is statically typed language है आपका C++. Next question, C++ character set includes, C++ character set में क्या क्या शामिल होते हैं? लेटेस्ट डिजिट, व्हाइट स्पेसेस, स्पेशल सिंबल्स, ASCII characters या all of the above. राइट आंसर इज ऑल ऑफ above. C++ कैरेक्टर सेट में ये सभी चीजें शामिल होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, टोकन, punctuators. Right answer is token. Smallest unit of a program is called token. Next question, token is also known as partition, lexical unit, literals, punctuators. Right answer is token is also known as lexical unit. Next question, blank are the words that convey a special meaning to language compiler. Operator, lexical unit, literals, keywords. Right answer is keywords. Keywords are the word that convey a special meaning to the language compiler. Next question, the name of variable function array given by programmer is called keyword, constant, name, identifier. Right answer is identifier. The name of variable function array given by programmer is called identifier. Next question, literals are also known as operators, lexical unit, keywords, constant. Right answer, constant. Literals are also known as constant. Next question, identify the correct escape sequence used for the new line. /t, /n, /a, none. आपसे पूछा जा रहा है न्यू लाइन के लिए कौन सा escape sequence का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर इज /n. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct identifier?
करेक्ट आइडेंटिफायर इज, कौन सा होगा? राइट आंसर इज फोर्थ, वेर अंडरस्कोर नेम 12। शुरू के तीन गलत इसलिए होंगे क्योंकि जो सबसे पहला आपका आइडेंटिफायर है वो एक डिजिट से शुरू हो रहा है, तो कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से शुरू नहीं होता है। सेकंड में भी वही चीज है, आपका आइडेंटिफायर जो है वो डिजिट से शुरू हो रहा है। थर्ड जो है उसमें एक स्पेशल सिंबल डॉलर का इस्तेमाल किया गया है, तो कोई भी स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं होता है सिवाय अंडरस्कोर के। तो राइट आंसर आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एस्केप सीक्वेंस यूज्ड फॉर द टैब। टैब के लिए कौन सा एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होता है? /t, /n, /a, /tab। राइट आंसर इज /t। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इन C++, हेडर फाइल का एक्सटेंशन बताना है। .cpp, .cc, .h, .header। The extension of header file in C++ .h. Program execution begins with the first instruction in main, start, new, get ch। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है? राइट आंसर इज मेन। आपका जो मेन फंक्शन होता है उसका जो पहला इंस्ट्रक्शन होता है वहां से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। इन C++, वेरिएबल कैनॉट कंटेन blank space, decimal point, hyphen, all of the above। वेरिएबल्स, जब आप वेरिएबल लिखते हैं यानी जब वेरिएबल का आप नेमिंग करते हैं, नाम लिखते हैं, तो आप किसको शामिल नहीं करेंगे? ब्लैंक स्पेस को, डेसिमल पॉइंट को, हाइफन को, या इन सभी को? राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। वेरिएबल के नाम में ना तो ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है, ना तो डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, ना तो हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C++ प्रोग्रामिंग /v इज यूज्ड फॉर फॉर्म फिट के लिए, लाइन ब्रेक के लिए, वर्टिकल टैब, या अलार्म? तो /v का इस्तेमाल होता है फॉर वर्टिकल टैब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ C++? का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? इनहेरिटेंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, नेम स्पेस, रिफ्लेक्शन। तो जो फीचर C++ का नहीं है वो है आपका रिफ्लेक्शन। Each C++ program must have blank function, CLR, SCR function, getCH function, main function, none of these। हर एक C++ प्रोग्राम में वो कौन सा फंक्शन है जो जरूरी है? राइट आंसर इज मेन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज सिंगल लाइन कमेंट रिप्रेजेंट्स इन C++? में सिंगल लाइन कमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? राइट आंसर फर्स्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट एस्केप सीक्वेंस यूज्ड फॉर नल। नल के लिए करेक्ट एस्केप सीक्वेंस आपको बताना है। राइट आंसर /0। It is standard practice to use the exit code blank to indicate that a program has terminated correctly। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा कि आपका जो है प्रोग्राम वो करेक्टली टर्मिनेट हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है? वो कौन सा कोड है? राइट आंसर 0। इसलिए आप अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न 0 लिखते हैं। Which one is multi-line comment representation in C++? मल्टी-लाइन कमेंट रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा C++ में? राइट आंसर थर्ड। C++ has blank types of comment। C++ में कितने प्रकार के कमेंट्स होते हैं? 1, 2, 4, 3। हमने अभी देखा। A constant without any fractional part,
integer, float, double, char. A constant without any fractional part. फ्रैक्शनल पार्ट ना हो वैसे कांस्टेंट को इंटीजर कहेंगे. चूज वन ऑड ऑप्शन. एक ऑड ऑप्शन को चुनिए. डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट. इसमें जो ऑड है वो है बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट नहीं होता है. इंटीजर कांस्टेंट के तीन प्रकार होते हैं. डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट. बाइनरी इंटीजर कांस्टेंट नहीं होता है. An escape sequence consume blank bytes, 1 bytes, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. Right answer 1 bytes. 1.7 E5 is real constant in fractional form, exponential form, decimal form, none. तो 1.7 E5 रियल इन रियल कांस्टेंट है ना. कौन सा फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म को. विच स्पेशल कैरेक्टर इज यूज्ड इन आइडेंटिफायर? माइनस, अंडरस्कोर, एंड, डॉलर. राइट आंसर अंडरस्कोर. Every executable statement in C++ must be terminated by a dot, comma, semicolon, colon. Right answer semicolon. A bool literal of C++ can have values true, false, both true and false, none. Right answer both true and false. The first character of identifier not be. किसी भी आइडेंटिफायर का पहला करेक्टर क्या नहीं हो सकता है? अपर केस लेटर नहीं हो सकता है, अंडरस्कोर नहीं हो सकता है, डिजिट नहीं हो सकता है, या लोअर केस लेटर नहीं हो सकता है. डिजिट नहीं हो सकता है. इन स्टेटमेंट सी आउट, हेलो, इसमें से बताना है आपको ये जो सिंबल है डबल कोट्स के भीतर वो क्या कहलाता है? इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, अबव बोथ या नन. राइट आंसर इंसर्शन ऑपरेटर. सी आउट के साथ, सी आउट के जस्ट बाद आप जो दो एंगल ब्रैकेट देख रहे हैं वो इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है. ऑपरेटर दैट रिक्वायर वन ऑपरेंड इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, क्वाड ऑपरेटर. तो ऑपरेटर दैट रिक्वायर वन ऑपरेंड इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर. इन स्टेटमेंट सी इन ए, सी इन के बाद जो आप दो एंगल ब्रैकेट देख रहे हैं इसे क्या कहेंगे? गेट फ्रॉम, पुट टू, बोथ अबव या नन. राइट आंसर गेट फ्रॉम, गेट फ्रॉम ऑपरेटर कहेंगे. रिमाइंडर मॉडुलस कौन होगा? हैश, परसेंटेज साइन, एस्टेरिस्क या एंड. तो होगा आपका परसेंटेज साइन. को रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं. इन स्टेटमेंट सी आउट हेलो, अगेन पूछा जा रहा है ये जो एंगल ब्रैकेट है सी आउट के बाद उसे क्या कहेंगे? गेट फ्रॉम कहेंगे, पुट टू कहेंगे, बोथ अबव कहेंगे या नन कहेंगे? इसे कहेंगे पुट टू. इसके अलावा इंसर्शन भी कहते थे, इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते थे, पुट टू भी कहते हैं. सी आउट इज क्या है? सी आउट स्ट्रीम आउटपुट ऑब्जेक्ट, स्ट्रीम इनपुट ऑब्जेक्ट, आउटपुट फंक्शन, आउटपुट ऑपरेटर. स्ट्रीम आउटपुट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ये, कोई फंक्शन नहीं. व्हेन रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मिसयूज्ड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल को अगर आप मिसयूज करते हैं तो वो किस प्रकार का एरर जनरेट करता है? टाइप एरर, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर या फिर रन टाइम एरर.
syntax error. An error occurs during the execution of a program. प्रोग्राम के रन करने के दौरान अगर कोई एरर एग्जीक्यूट होता है, कोई एरर पाया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंटेक्स एरर, टाइप एरर, लॉजिकल एरर या रन टाइम एरर? आंसर होगा रन टाइम एरर। इन स्टेटमेंट सी इन ए, सी इन के बाद जो आपका एंगल ब्रैकेट देख रहे हैं इसे क्या कहेंगे? सी इन के साथ जो लगा हुआ है, इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, अबव, बोथ या नन? आंसर होगा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। व्हाट विल बी द साइज ऑफ स्ट्रिंग कॉम्प स्लैश एंड टीच? इसका साइज बताना है। इसका साइज जो है वो आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। COMP 4 कैरेक्टर हो गया, स्लैश एन एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा तो 4 और 1 5 हो गया। टीच में 5 कैरेक्टर और है तो 5 और 5 10 हो गया, और एक कैरेक्टर आपका हिडन है /0 जिसको नल बोलते हैं। तो राइट आंसर इज, इसका साइज होगा 11। 10 कैरेक्टर जो आपको मैंने यहाँ पर काउंट करवाया और एक कैरेक्टर /0 जो कि हिडन है। इंड एल इज, इंड एल क्या है? मैनिपुलेटर या कमांड है, फंक्शन है, ऑपरेटर है, या सभी है? राइट आंसर मैनिपुलेटर या कमांड। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 45 सी प्लस प्लस के MCQ। ये सी प्लस प्लस के बेसिक कंसेप्ट्स या कह सकते हैं जो सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन होता है उससे लिया गया ये MCQ है। इस सीरीज में, इस MCQ की सीरीज में हम लोग आगे और भी सी प्लस प्लस के इंपॉर्टेंट MCQ लेकर के आएंगे, आगे के और भी चैप्टर से जुड़ा हुआ। तब तक के लिए थैंक यू।